something. But these ones are really difficult, and especially for me because I've not really been one of those controversial celebrities, and here my life is become controversial now. But thank you everybody for coming in. मुझे सिर्फ ये बोलना है, this is going to be short. I can't say short and sweet. There's nothing sweet about this, but all I'm going to say is that आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो, and then you move on. You live and you let the other person live. फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है, बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दैट्स एन ईजियर वे आउट. एंड इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है. आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी दैट यू नो आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग. यस आई एम, आई वेरी मच एम. बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक, स्पेशली जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है मेरे साथ, मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी. द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई डिड वॉज ऑन द 1st of June 2021. वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ पब्लिक फिगर, और यूजुअली व्हेन यू आर फेमस एंड पीपल नो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ. तो जब FIR फाइल हुई, द मीडिया गॉट टू नो, एंड द अदर पार्टी, Karan Mehra, started talking about it, and obviously I had to counter it. But that time I was in pain, I was in a state of shock. A lot was happening. पुलिस मेरे घर पे थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है. Suddenly it's like your life is falling apart. But today I feel more composed. I feel I have done a considerable amount of healing. और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले 1-1.5 साल से. That means from 1st June 2021 until today. तो without further ado, I wanna counter a few allegations that have been put on me. इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी, but a lot of people took my silence for my weakness. And I want to let you know that my silence is definitely not my weakness. I'm busy providing for my child. I'm trying to earn my living. I'm managing a lot of things. My life has taken a U-turn, and that's why I'm busy doing that. And I think that I should definitely give that more priority than answering to every single YouTube allegation that comes my way. So without further ado, I'm going to come straight to the points. I'm not here to attack anybody. I'm only here to protect myself. And I will do whatever it takes to protect myself, because here we have a child involved. So the first allegation that Karan Mehra put on me, you ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूँगी, that is going to be fact based. That is not just my feeling. It's actually very factual. So I'm going to counter a few points. The first one being, Nisha, can you go in Hindi? I'm going to try. Certain things, okay, I'm going to try. So the first one is section 377. जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything? FIR में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल सेक्शंस ऑफ कोर्स. एंड सबसे बड़ा जो उसमें मानो कि IPC की धाराएं जो लगाई थी वो 377. शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो, तो देखें वो गूगल है. बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स. और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है, उसने ना सिर्फ मेरे पे, मेरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है दैट वी ऑल हैड अ नेचुरल सेक्स टुगेदर. सो मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक IPC की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर. ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं.
मतलब Okay, so we have a few video clips and all of you all must be well aware of this. But मैं चाहती थी कि I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है। तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज व्हाट इज़ इट गोइंग टू गिव यू? उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल। और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। This is not made by me. This system is not made by me. Any decent man would not talk about this openly. 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहाँ पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है। आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फ़ीमेल होता है और it's done in a very confidential, private and a dignified manner. उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी। It's not the right thing to do. After all, I am the mother of his child. You've lived with me for 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विथ हिम. इट्स अ कंप्लीट शेम. टू कंक्लूड दिस पॉइंट ऑफ 377, आई वुड लाइक टू से कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, बिकॉज दैट वुड बी स्पॉइलिंग माई केस. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. 1. 2. I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं and ये rumors मेरे बारे में फैला रहे हैं और उन्हें प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें. तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos. 4th, the necessary documents along with proof like that has been attached in the court and I'm taking a legal action against such a strong statement and such a strong allegation. That comes to the end of 377. Now, I just want to ask that are there any questions related to this section that anybody has? Because I'm really going to take very limited questions in. We don't have one-on-one, so everybody is requested to take whatever. So this 377 जो धारा लगाई गई है ये आपकी तरफ से थी या फिर when you ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है. So is there any fact कि मतलब आपके साथ में उस तरीके की चीजें परफॉर्म हुई है इसलिए ये धारा लगाई गई है? Obviously करण ने इस चीज से साफ इनकार See, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. I am just saying what I have attached in the court and what are the facts supporting it. मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ and I am not making this a family drama. Today this issue has become very very serious क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो. आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपने मर्जी से इसको मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो. दैट इज़ नॉट फेयर. All I'm saying is whatever Karan has said is wrong because हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है.
All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. तो ये जो कंप्लेन कॉपी आपने हमें दिखाई है ये तो करण मेहरा पर जो कंप्लेन की है वो वाली कंप्लेन कॉपी है राइट? उनके Correct. पेरेंट्स पर जो आपने कंप्लेन की है वो There is no parents may complain. Everything is documented into two, FIR 1 and FIR 2. FIR 1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021 क्योंकि रात को हुआ था तो वो फाइल करते करते there were a few hours और वो फर्स्ट को रजिस्टर हुई. ओके. And then there is an FIR 2 जिसमें 377 included है. So from your side you are saying कि आपने उनके पेरेंट्स और उनके भाई पर कोई एफआईआर Absolutely I'm saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये सेक्शन उन पर नहीं लगाया गया है. Okay? Anything else? In FIR 1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother is wrong. I'm defying that accusation and I've produced proof of that. जब आपने कोई complaint की ही नहीं तो आप उसका proof कैसे दिखाओगे? Because it's missing, it's not there, right? And ये सारी चीज़ें written गई हैं. So even, I mean, it's been said to my investigating officer. So जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं उसका प्रूफ कैसे दिखाया जाएगा, right? So obviously the lawyer and Karan are not reading the FIR very carefully. You want to show that the first page of the FIR, man, on how the section is written? You've shown it, okay. I'm moving on to point number 2, where Karan and his lawyer both have said कि FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ. ओके कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ. एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है ना कि दीवार पर मारने से. और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है. सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से. नाउ यू वांट टू शो दैट? So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं. तो इसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया. I was a bit surprised. और जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराओ. भैया आप प्रोसीजर कराते तो पता चलता दीवार से मारा है, MRI होती, CT स्कैन होती. कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था जो कि नाउ इस चीज़ की चार्जशीट फाइल हो चुकी है by the police in the court and there is an injury report. I had gone to do the medical. This is how the incidents took place. I dialed 100. This is the hospital का injury report जहाँ पर मैं गई थी. Now I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया. वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई. ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया. उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वॉज ऑन माई फेस एंड इट वॉज माई राइट टू रिफ्यूज़ इट. तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग एलिगेशन. देन आई केम बैक टू द पुलिस स्टेशन and then my first FIR was filed. और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, just show that, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है. That's it. So I have a skin problem which is called keloid. उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वूंड लगता है. जब मेरा C-सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से. दैट्स हाउ इट बिकेम ओके. सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड. Any questions related to this? Yes, it was a proper surgery. Which date was the surgery? See the bill of the Ambani? I think the
first this happened and 2 days. Yeah. Any questions pertaining to this medical? I'm coming to the third issue. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. Firstly, the house belongs to the both of us. The house is registered on Nisha Rawal Mehra and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house. और उस house पर loan है, that makes us co-borrowers of the loan on the house. You want to show that purchase agreement? Karan Mehra and Nisha Rawal Mehra. Of course, I have deleted all the details because I didn't want the address and everything to be seen. Okay. Now, why I'm still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव लाइबिलिटीज़. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. इट टेक्स टाइम to stabilize yourself. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that. Want to show the moratorium allowance letter? Anybody who wants to see this separately, we can show it to you, but out there we can only show it in a limited way. Now, एक तरफ करण मेहरा बोल रहे हैं मैं उनके घर में रह रही हूँ एंड ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI, सो दे शुड टेक द EMI फ्रॉम मी और दे शुड throw me out of the house. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child who was not even 4 years old that time when this happened. जिसको of course बैंक ने deny कर दिया because हम दोनों ही co-borrowers and co-owners हैं, तो उसके लिए हम दोनों को agreement में होना चाहिए to surrender it. You want to show that letter that he had written to IDBI, to the bank? Inability of Mr. Karan Mehra to continue the service of home loan. Okay, zoom out. अब इसके बाद उन्होंने लिखा है कि निशा ने जाकर बैंक में धमकी दी. मुझे बैंक से फ़ोन आया था कि करण wants to surrender the house. So obviously I went to the bank to meet the bank manager with my accountant and my team to understand exactly what the call was about or what the letter was about. And I also wanted my statement since inception ताकि मैं prepare कर सकूँ कि exactly क्या outstanding है. ये सब मुझे नहीं पता था because finances करण देख रहे थे. जब मैं वहाँ पर गई, it seemed like the bank people had already made up their minds, जिसकी वजह से अगस्त 2021 में मैंने उनसे इंसेप्शन से स्टेटमेंट मांगा था और आज तक वो स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है. सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड इन द बैंक. वांट टू शो दैट व्हाट्सएप मैसेज? ग्रीन वाला ऑफ कोर्स मेरा है. काइंडली कैरी द एंटायर अकाउंट समरी स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन. और आज तक मुझे वो स्टेटमेंट नहीं मिला है, विच इज़ माई राइट बिकॉज आई एम द को ओनर एंड को बोरोवर ऑफ द हाउस. नाउ मेरे जो ब्रोकर्स हैं उनको करण मेहरा लीगल नोटिस भेज रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं. द फ्लैट वॉज अप फॉर सेल मच बिफोर मी एंड करण ब्रोक अप. दैट मीन्स मच बिफोर 1 जून 2021 मार्केट में ये न्यूज़ जा चुकी थी कि हम ये फ्लैट बेचना चाहते हैं. अगर मैं ये फ्लैट बेचती हूँ तो हम ये बैंक का लोन अदा कर पाएंगे, उससे हमारा सिबिल ख़राब नहीं होगा. अगर हमारा सिबिल ख़राब होता है तो बहुत साल लगते हैं आपके सिबिल के स्कोर को वापस न्यूट्रलाइज करने में. सिबिल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन
मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी यूजुअली टेक लोन्स फॉर हाउसेज, फॉर कार्स, राइट, और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सिविल ख़राब ना हो, एंड दैट्स वाई आई एम स्टिल ट्राइंग टू सेल द हाउस. और ये मैं इलीगली नहीं कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक मैं वो घर बेच दूंगी और वो सारे पैसे ले लूँगी, बिकॉज द हाउस इज ऑन बोथ आवर नेम्स. सो देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू सेलिंग द हाउस. नाउ हाउस मॉरेटोरियम में है, मैंने आप लोगों को बताया जैन 2023 तक. फिर भी करण मेहरा चाहते हैं कि मैं उस घर की EMI भरूं, which is about 4,10,000 into the last 14 months, which is he's written in the counter petition now, and he demands that 3 lakhs into 14 months I should pay to him as compensation for living in that house. ये सारी चीज़ें are just basically pressure tactics. They've got really nothing to do. That brings the house point to rest. Any questions on the house? Yes. जब आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे थे, ये तब सेलिंग वाली बात थी घर की, या उसके बाद जब ये आपकी FIR हुई थी तब हुआ था ये बहुत पहले से चल रहा है. मतलब आई थिंक मे बी अबाउट 6 months or to a year or something, roughly tentatively. I have those messages जहाँ पर ब्रोकर्स को गए हैं, हमारे दोस्तों को भी गए हैं, that you know we are trying to sell the house. तो ये काफ़ी पहले से चल रही है बात. That means आप लोग जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करने वाले जब थे, हम तब साथ से- में थे, Yes. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स के भी कहीं पहले से. Okay. Yes. But I explained to you why I'm still interested in selling the house, because I don't want my CIBIL to go for a toss. I have nowhere to go. He has his parents' house, right? Now, any other questions pertaining to the house? So now you are trying to sell the house, right? I'm trying to sell the house because I have moratorium till Jan 2023. अगर उसके पहले घर बिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिकता है तो मुझे तब तक वो घर वैसे भी खाली करना है. So इसके जो पेपर्स हैं वो आपके और करण के पास जी. दोनों के पास है, और इसमें करण आपने जैसे कहा कि आप दोनों का है ये, राइट? सो इसमें अभी फिलहाल लीगल वे में करण का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है? In selling the house? Yes. Zero. In fact, in my counseling sessions, I have been telling the counselor, ma'am, कि please इन्हें बोलिए कि मेरी मदद करें to sell the house so that our CIBIL doesn't get spoiled and we can settle the bank score. Otherwise क्या होगा, आप घर सरेंडर कर दोगे, बैंक वो ले लेगा, लेकिन आपका CIBIL ज़रूर ख़राब हो जाएगा. और by chance there is still an X amount that we owe the bank, then that's a problem too. अगर बैंक वो घर ऑक्शन में बेचता है और उसके बाद भी we owe something, they are not able to sell it at a circle price, then that is a problem, that's a liability. So somebody has to tell Karan, either the people that are surrounding him are wrong and not giving him the right suggestions. I don't know. Because मैंने कई बार कोशिश की है to have a conversation, to put this behind us, but So आपने लीगल वे में करण को बताने की कोशिश की, या उनके फ्रेंड्स के थ्रू बताने की? see legal way क्या होता है, मतलब it's all in the court, right? पहली बार लीगल वे में भी किया जहाँ पर दोस्तों ने हमारी बात करने की कोशिश की और लॉयर्स के बीच में मेल भी एक्सचेंज हुआ है, हमारी मुलाकात नहीं होती है, राइट? वी डोंट कम फेस टू फेस. तो अभी रिसेंटली जब काउंसलिंग सेशन हुआ था, दैट इज़ द ओनली टाइम वी केम फेस टू फेस. 2 काउंसलिंग सेशंस हुए थे, उसमें भी मैंने ये बोलने की कोशिश की थी. देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट. काउंसलिंग सेशन के अलावा आपने कॉल्स वगैरह किए हैं? मैंने उनको एक मेल किया था और एक बार एक व्हाट्सएप किया था. ओके, बट राइट नाउ जैसे आपने कहा कि आप ये घर मैनेज कर रहे हो, जी. rent वगैरह जो भी है, आप खुद ही लोन का देख रहे हो? नहीं, it's on moratorium, so I'm not paying the loan. I'm waiting to sell the house, right? Obviously, I can't pay 4,10,000 every month and continue to live in that house. But there are so many other responsibilities. इतना बड़ा घर चलाना, आपका स्टाफ, आपका बच्चा, हमारी लाइफ तो वही है ना. सिर्फ करण मेहरा इक्वेशन से बाहर हैं, बाकी तो सारी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही हैं जो मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रही हूँ अकेली. तो ये जब सेल होगा तो इसमें आपका और करण मेहरा का फिर इसमें कितना होगा? Like, are you ready to give divided? Of course, but we have a huge outstanding. मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा भी. अगर कुछ मिलता भी है, then of course it will be divided. All these things are spoken. It's not like it has to be in black and white. जब ये registration, आप लोगों को पता होगा how the registration process happens. Both the owners have to come to the table. There is a proper procedure to it, right? Nisha, you spoke about sending him a mail and a message. Yes. Was it just about the flat, the house, or was it about Sure, something else as well? It's about the child, and it was basically about our life. Then let's put it behind and move on. I don't think it's attached here, man, but it's there with you. I have a screenshot of that mail and WhatsApp message.
सी बीच में ये 2 काउंसलिंग सेशन से हमारी मुलाकात हुई। पहले हमारे दोस्तों के थ्रू बात हुई, लॉयर्स के थ्रू मेल एक्सचेंज हुआ, एक बार बीच में कॉप्स के थ्रू भी बात करने की कोशिश की गई, जहाँ पर वो घर आ गए थे अचानक से। मैं बताऊँगी इस बारे में। सी, I'm going to read it out to you. Karan, since you're in Mumbai and you came to the Imperial Home on the 2nd, this was in November, with unknown people and broke all the norms of COVID precautions, even though I was under quarantine, I felt very insecure, especially for Kavish. The way he was being exposed to strangers and the way you were walking all over the house, and even through the contained room, your sudden appearance without me mentally being able to prepare Kavish that he would meet his father after 5 months also is shocking for the child's mental health. Since you never tried to contact me to even say a hello to him, I have been handling this situation and taking help professionally on how a child's mental state should be handled. And this kind of incident creates confusion in the child's head since you then disappeared from his life again. If you are not keen to resolve our differences and issues on humanitarian grounds in view of future of Kavish, please return all his funds so I could secure him step by step. For the sake of whatever time we have spent together, I request you to cooperate in resolving this issue of the housing loan at the earliest, as I am unable to take any more financial burden in this regard. Hope you will realize your mistake of entering the house, sending legal notice for surrendering house, etc., which is going to affect the life of little Kavish too. The rest I leave it to you. Thanks. Okay, now is there any more question regarding the house? Neha? I'm going to move on to the next question, which is next point of allegation, which is the car. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझसे 3 lakhs per month और वो दिखाया अपने image. Now, addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के loans clear हो चुके थे. उसके बाद top up loan लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your sets, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between the couple. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन visit कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है. चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft. Without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई है. So I did not steal that car. That car was mine. Anyway. तो just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज़ है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, वेदर इट वॉज द हाउस और वेदर इट वॉज द कार. ठीक है, ही हेट्स मी, बट व्हाट अबाउट हिज सन? एनीवे, दैट्स द इशू ऑफ द कार. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car? Just wanted to understand this कि आपने क्रेटा को क्यों सेल किया और क्योंकि क्रेटा 7 साल पुरानी थी
और वो मुझे इश्यूज़ दे रही थी. दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन, उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माय न्यू कार दी, और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑफ आपने दैट. जो न्यू कार खरीदी ये आपके केस के बाद हुआ? हाँ, Jan 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. एंड करण ने जो टो करवाए थे कार, वो आपके केस से पहला हुआ था या वो केस से नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में, बिकॉज इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन. आई जस्ट एक्सप्लेन राइट, उसका पिस्टन टूट गया था एंड इट वॉज एट BMW, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सो द कार वॉज नॉट वर्किंग. देन आई फिक्स द बैटरी, आई डिड द रिपेयर्स, आई डिड द इंश्योरेंस एंड आई ब्रॉट इट टू अ यूजेबल कंडीशन सो दैट मी एंड द चाइल्ड कुड यूज इट. वी नीड 2 cars राइट. एक कार में मैं शूट पे जाती हूँ, दूसरी कार में देर इज अ सर्टेन लाइफ स्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सो फार. I cannot just jerk the child into a different switch. मैं उसको धीरे धीरे I'm making him used to a new lifestyle. But obviously we have necessities and we have needs. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर, अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास न्यू कार आई है, तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया वो. Any other questions pertaining to the car? करण ने लाइक बच्चे के लिए सोचा नहीं, मेरे लिए सोचा नहीं. क्या आपने कभी करण को बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज करण को तो एंड ऑल्सो वी हैव 1 second, let me address her question first. क्या बताया? कि आपको प्रॉब्लम्स है कार्स के रिलेटेड, बिकॉज वो तो ऐसे ही आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाएंगे ना. देखिए, वो ऐसे ही लगाएंगे कि वो वैसे ही लगाएंगे, वो आपका ओपिनियन है. 1 2, जो भी मैंने बोला वो मैटर ऑफ फैक्ट है. दिस इज़ नॉट माई फीलिंग एंड अ विम ऑफ फैंटेसी. एवरीथिंग दैट आई एम शोइंग यू, आई एम शोइंग यू प्रूफ. करेक्ट. सो दिस इज़ नॉट वो ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं. नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना है, बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबको बुला के कि देयर विल बी प्रूफ एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट सी एनी प्रूफ कमिंग अप. करेक्ट. और ये बात, आपका क्वेश्चन कि ये बात उन्हें पता है कि नहीं पता है, वी वर अ फैमिली, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर डिवाइडेड राइट बिटवीन अ कपल. एक जन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, एक घर संभालता है, इट्स डिवाइडेड. जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज़ हो, हमारे बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग थी. where he was taking care of the financial aspect, the insurances, all those kind of responsibilities of the house. He is very well aware of this. और अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की कि क्या हो रहा होगा, बच्चा कैसे जा रहा होगा? आपको पता है एक कार है, आपको पता है आई एम अ वर्किंग पेरेंट राइट, आपको पता है बच्चे की भी नीड्स हैं, और फिर भी आप वो एक कार मांग रहे हो. ये तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है. एज अ फादर, एज अ पेरेंट, यू शुड नो दीज थिंग्स राइट. Your what was your question? I was like कि जैसे आपने कहा कि he was not bothered about how you guys are doing, and हमने मीडिया में ये भी सुना है कि आप उनको मिलने ही नहीं देना चाहते हैं काबिल से. What is your take on this? क्योंकि we have been hearing that आप मिलने ही बिल्कुल नहीं दे रहे हो. देखिए, आई एम गोना आंसर दिस. मैंने अगस्त में उनके खिलाफ डिवोर्स पिटिशन फाइल किया था और उन्होंने समन्स मिस वो करते गए. फेब तक या मार्च तक वो समन्स मिस करते गए. इट्स नॉट लाइक ही वाज सो बिजी ही डिडंट हैव टाइम. ही नेवर एड्रेस्ड द कोर्ट. देयर वाज समन्स राइट फॉर व्हिच ही वाज कॉल्ड टू द फैमिली कोर्ट. ही नेवर केम. He has disrespected the judicial system in many ways. Yes, I took an injunction order against him now from entering the house and against Kavish because जून में हमारा सेपरेशन हुआ था. सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली, बट हमारा ब्रेकअप, हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था. तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश he is a child, he has expenses, he has needs, he needs love, he needs emotions as well as of both parents, right? He goes to school, उसके खर्चे होते हैं, चाहे उसके कपड़े हों या बर्थडे पार्टीज़ हो या कोई भी खर्चे हो. He has extra classes. कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा राइट. देन अगेन मैंने आप लोगों को वो ईमेल दिखाया था, जो आई विल कम टू दैट, आई एम गोना शो यू द वीडियो ऑफ दैट. He came to the house in November, on the 2nd of November. I think 16th of November उनके पास ऑलरेडी एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी अपीयरेंस का डे था, पर वो 16 तक नहीं रुके, वो 2nd को ही आ गए घर में अनअनाउंस्ड. फॉर विच देन अगेन ही वॉज कॉल्ड टू द कॉप स्टेशन. आई कंप्लेन टू द पुलिस. उसका भी रिटन कंप्लेन मैंने दिया है. सो आई डोंट थिंक ही इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. 1 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको डिनाई करोगे राइट. देर इज़ अ लीगल सिस्टम. आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते? हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है
आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट? तो उनका रिप्लाई क्या था? आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स. ही डिड नॉट टेक इट. ही सेड आई वांट फुल कस्टडी, आई वांट फुल कस्टडी. बट क्यों? एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ. जब काउंसलर ने बोला कि आप डोंट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, इज लाइक आई रियली डोंट हैव एनीथिंग, आपको तो पता ही होगा. And then I said, then how will you take care of the child? I am responsible, I am capable, I am willing, and I am doing a really good job as a mother. I am taking care of the child's holistic well-being, चाहे उसकी mental health हो या physical health हो, emotional health हो. I am doing everything. चाहे उसको therapist के पास लेके जाना हो. Then how are you being a responsible parent? आप सिर्फ एक ego play के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो. बच्चे का बचपन बीत रहा है. Why can't you just take visitation rights and come and meet the child? Correct? This is my answer. Anything else? Although I was going to come to the child's point, I have many more things that I want to share in that. निशा, ये जो आप स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं और सारी जो चीज़ें आप दिखा रही हैं, how authentic is that? मतलब especially the screenshot. I would just like to. Listen, ये आप अपने दिल से पूछिए. I am not the kind of person who participates in controversy because I would not meet you after 1.5 years. मैं रोज़ बैठ के YouTube videos बनाती. एंड ऑथेंटिसिटी आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ आती है. दिस इज़ नॉट माई क्लेम टू फेम. आई हैव अ रियली गुड बॉडी ऑफ वर्क इन द लास्ट 21 years. आई एम अ क्रेडिबल नेम इन एडवर्टाइजिंग. तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्ट टू पुट दिस बिहाइंड अस, राइट? एंड क्योंकि वो एक मीडिया ट्रायल इनिशिएट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि ये कंटिन्यू हो, बिकॉज नाउ देर आर अदर पीपल लाइक कैरेक्टर विटनेसेस एंड फ्रेंड्स हु आर जंपिंग इन टू द पॉन्ड एंड पार्टिसिपेटिंग इन इट फॉर वॉट एवर रीजन्स आई डोंट नो. I don't want to do that. I want to put an end to this. This is absolutely authentic. I have my team of lawyers today, and I don't know how you guys can cross-check it. You can come to, their office and have a look at it. But I can't let you take the documents because there are limitations. I'm not allowed to just show my address or show my name or show my PAN number. I can't do that. इसलिए वो सारी चीज़ें blur की हुई हैं. Well, Nisha, right after Karan's press conference, आपसे बात करने की मीडिया ने कोशिश की थी. सो यू न्यू एवरीथिंग. आपने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, आपको पता होगा आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए. जब नेक्स्ट डे मीडिया ने आपसे बात करने की कोशिश की, यू इग्नोर्ड इट. Correct. व्हाट वाज द रीजन फॉर इग्नोरिंग? बिकॉज आप एट दैट मोमेंट ही अपने आप को बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी. नहीं, एक मिनट, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही हूँ. लाइक आई सेड, आई एम हियर फॉर दोज पीपल हु केयर टू नो माई स्टोरी. एंड प्रूव क्या करूँगी? यहाँ पर कोई जस्टिस थोड़ी मिल रहा है हमको. वो तो हमको लीगल सिस्टम में ही मिलेगा ना. करेक्ट? क्या मीडिया ट्रायल इज गोइंग टू मेक अस कम टू अ जुडिशियल कंक्लूजन? नहीं ना. सो आई डोंट वॉन्ट टू एनकरेज दिस ट्रायल, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गेट इन टू द puddle to explain my side of the story. I didn't want to be a part of this. And it is not like Karan जब मेरे ऊपर एक allegation लगाएगा मैं अगले दिन उसको बोल दूँगी हाँ ये है, हाँ ये नहीं. I have work to do. I have to go to my shoot. It takes long hours. I work day and night. Right? मुझे अपनी energies एक तरफ डालने को अगर कोई allow करे, then I will do it. Right? Now he's saying he doesn't have work, so maybe that's why he's making those videos. But I have work. I have to raise a child. Okay, so that was the car. We've shown all the documents pertaining to the car. Now I'm going to address the issue of money. Karan कहते हैं कि मुद्दा सारा पैसे का है. Want to show that video? इसलिए मुद्दा सारा पैसे का है और उसी वजह से पहले दिन से उसने जो किया वो किया. उसके बाद मेरी फैमिली को रोपिन किया गया सेकंड एफआईआर में, जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहां पर मेरे पेरेंट्स को 337 तो जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी? आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एलिमनी, बट Karan says I have asked for alimony.
सो ही नीड्स टू शो इट कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने एलिमनी मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो ऑब्वियसली आई कांट शो इट. येस, वी हैव आस्क्ड फॉर कॉम्पेंसेशन और वट एवर द राइट टर्म इज, मेंटेनेंस फॉर द चाइल्ड, बट in the counseling sessions on record I have said this, even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child, but I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा है, right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show that maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. I'm sure ये सब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला होगा. जो वो बोल रहे थे 1400 पेज का पिटिशन मैंने फाइल किया है, वो यही है 1400 पेज का पिटिशन, क्योंकि उसकी कॉपी मुझे तो मिलती है. नाउ addressing the issue of the affair. Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business, and what he does in his personal life is none of my business. We are adults and we know how to conduct ourselves. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I've walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. I am so surprised that अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl, and so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी है. Like I said, there is only limited stuff that I can share here. Now addressing the issue of the kid. दिशा, one question. हाँ, please. जब करण ने आपकी रिलेशनशिप के बारे में ओपनली कहा और आपको जब ये सब चीज़ें पता चली, so what was your reaction from your end? उन्होंने कहा कि जिसके साथ में पहले वो पहले से है, तो आप उनका गर्लफ्रेंड का नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि मैं करण नहीं हूँ. Because I am not Karan and I am not here to compare. I will do what I have to do. यहाँ पे मैंने कहा मैं किसी को अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ. That means everything that he has said against me, that is the part that I am producing a counter for. And he must have said 100 things. I don't have to counter everything. But the things that are important, जो message बाहर जाना चाहिए, those are the only points I am addressing. Only because he is saying it, I am not going to do it. And also, you said कि what I am doing is none of his business and what he is doing is till the time आप लोगों का divorce नहीं होता है, it's still, Yes, on a business. paper, but अगर divorce 5 साल बाद होगा, you want me to just stay on there? So that's As a what- woman, I'm asking you. You want me to just hang in there? No, but that is what Karan also said. So you think about it. Is it even logical what he's saying? Once he makes an exit from my life, he's made an exit, right? What I do is my business. I'm not answerable to him. And उसका relation क्या है इस केस से, मुझे आप ये बताइए. आपने क्या किया? आपने इतने मड स्लिंगिंग की, क्योंकि आपको पता है कि you're a public figure, she is a public figure, so it's very easy कि वही headlines बन जाए, कि पूरे केस से पूरी चीज़ हट के उस पॉइंट पर आ जाए. और वही हुआ, obviously, because it's a hot topic. People want to know what's happening. बट निशा, डू यू अग्री विद ऑल द एलिगेशंस जो उन्होंने आपके डेटिंग पर और ये सारी चीज़ों पर बयान दिया? डू यू अग्री टू व्हाटएवर? I'm not answerable. I don't feel the need that मेरी personal life, I will share a part of my life that I wish to share. Right? All of us have our personal life. We are not answerable to each other. मुझे लगता है कि जो allegation मुझ पे लगाए हैं, जो serious allegations हैं, जो message पहुंचना चाहिए, those are the only allegations I'm going to talk about. And I have in a very subtle way given my message out. We are adults
And what I do after he's left or what he does after I've left is none of each other's business. But then you said कि मैं कभी I have never been into the controversy. Now नहीं he has been into the controversy. No, I did not say he has been. Okay, you have never been into Yes. the controversy. So have you ever thought कि हम mutually बैठ के इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं? Didn't I just show you the email? मैंने अभी तो बोला, मैंने दोस्तों से बात की, लॉयर्स ने उनको मेल किया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने काउंसलिंग सेशंस में बोला. यही तो मैं बोल रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि हम बैठ के बात करें. We are human beings. We don't have to act like animals. We can talk to each other and we can sort it out. What is the point of this case? It is going to go on till years. What is the point? हम सब mental peace चाहते हैं. He should move on and I should move on. And there is a child involved. अगर वो मुझे मेरी energies चैनलाइज नहीं करने देगा अपने काम में, अगर मैं यही करती रहूँगी या उसके हर यूट्यूब वीडियो पे मैं आंसर देती रहूँगी, तो मैं अपना काम कब करूँगी? वो बच्चा पलेगा कैसे? वो उसकी स्कूल की फ़ीस कौन भरेगा? इफ़ ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो वो क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू उससे विजिटेशन राइट्स करते हैं, या क्यों नहीं बोलते कि चलो मैं एक एक्स अमाउंट, या चलो उसके स्कूल का मैं ख्याल रखूँगा, या तुम ये करो? क्यों नहीं करता? कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा? Why is he silent? He is making all these videos on YouTube and Instagram. 100 days में अब इससे नहीं मिला हूँ अपने मिनियन से. मैंने एक बार उसको कमेंट किया, so who stopped you? Yes, there is an injunction order, but you can come through the court because you behave like that. और जो दो लोगों के बीच में होता है वो उन दो लोगों को ही पता होता है. आप एक लिमिटेड वे में ही ये नॉलेज शेयर कर सकते हो. And I don't want to strip anybody or cause any damage to anybody. Like I said, मैं भी चाहती हूँ कि he should do well in life and he should just go and live his life and leave me alone. If he can help me because he also co-produced the child, then great. If he doesn't think that he wants to help me and he doesn't want to be responsible, it's okay. I'm still okay for Kavish and him to meet. Because Kavish is also going through things. There are questions that he also asks me. I'm treating him like a flower. I'm doing everything, right? उसको प्रोटेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना, मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak. निशा, I just wanted to know कि जैसे आपने कहा कि मैसेजेस और ईमेल्स ड्रॉप किए गए थे, तो क्या ये बैठ के या कॉल्स पे या फिर आपने कोशिश की कि आपकी तरफ से कि ये क्या बैठ के सॉल्व किया जाएगा? जी, मैं वही तो बोल रही हूँ, वो ईमेल्स में यही तो लिखा है, right? There were other mails also that were shared with him. And there is something known as a mail for prejudice, right? Sagar, that's what it's called. वो कॉन्फिडेंस में दो लॉयर्स के बीच में एक्सचेंज होता है. इट इज़ नेवर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट. यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आपकी बात चल रही होती है, दीज आर सम लीगल एथिक्स दैट वन फॉलोज. उनकी लॉयर ने उसका भी प्रिंट आउट लेके अटैच करा हुआ है. यू नो थिंग्स दैट हम जो एज अ कपल ट्राई कर रहे थे, इफ़ वी वर ट्राइंग टू डू सम हिसाब, वो चीज़ों को गलत वे में कोर्ट में प्रेजेंट की गई हैं. तो मैं तो खुलेआम सबके सामने बोल रही हूँ बिकॉज दिस विल बी माई लॉस. अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ और फिर भी मैं ये चीज़ें क्लेम कर रही हूँ, देन दिस इज़ माई लॉस. इफ़ दिस वॉज अबाउट मनी, देन आई वुड हैव कंटिन्यूड द बैटल. टुडे आई वुड नॉट से आई एम ओके टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड. आई वुड से येस करण मेहरा, यू हैव टू पे फॉर द चाइल्ड, बट आई एम नॉट सेइंग दैट. 1.5 साल भी मैंने संभाला है और आगे भी मेरी काबिलियत होगी, मैं संभालूंगी, क्योंकि वो बच्चा अपना नसीब लिख के खुद आया है. निशा, आपने जैसे कहा कि वो हर चीज़ जो बोल रहे हैं, आपने लॉकअप में कुछ चीज़ें जो थी आपके रिवील करी, और वो चीज़ें जब सामने आई, करण ने उसे भी अलग वे में ली, जबकि उन्हें भी पता था ये सब चीज़ें, राइट? आपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी करण मेहरा की, तब आपने उन्हें कुछ बोला था इसके बारे में कि लाइक ये तो आपको पता थी, फिर आपको मीडिया में ये सब चीज़ें लाना? आई डोंट टॉक टू करण. और जो चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. मैं 2 चीज़ें नहीं बोलती हूँ. जो मैंने लॉकअप में बोली, आई विल स्टिक टू इट. वो पूरी सिचुएशन, वो पूरी सर्कमस्टांस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करके बोली थी. टुडे वी आर नॉट इन अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप. जिन्होंने वो नहीं देखा, दे आर वेलकम टू गो एंड सी इट. सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट बिकॉज दैट वाज अ शो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज़ रियल लाइफ. वी आर टॉकिंग लाइक रियल पीपल. आई एम निशा. आई एम नॉट रियली, इट्स नॉट फेयर टू टेक अ
particular content from some other IP or whatever talk about it, I'm not sure that's the right thing to do. उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था यही आपकी रिलेशनशिप को अलग वे में जो अगेंस्ट होकर बोले थे, मेरा मुद्दा वही है आपसे पूछना नहीं उन्होंने बहुत गलत लाइट में जो कि आपने बोला पोर्ट्रे किया है, उसको ट्विस्ट किया गया है अपने तरीके से, और मैं उनसे बात नहीं कर पाई बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट इन टच विथ हिम. और इतना कुछ हो गया है अब तो मुझे इट वॉज शॉकिंग, इट हर्ट्स, इट पेन्स बिकॉज देन देर आर ऑल दीज ट्रोलर्स हु गो बाय समबडीज पर्दे पर जो आप एक किरदार निभाते हो उसके बेसिस पर आपका एक्चुअल कैरेक्टर जज करते हैं लोग, राइट? अगर आप एक गुंडे का कैरेक्टर निभा रहे होते तो आपको नहीं कोई बोलता, पर अगर आप एक गुडी टू शूज़ या आप एक भगवान का किरदार अगर निभा रहे हो तो लोग मानेंगे नहीं, उस पर ही पत्थर फेंकेंगे जो उस पर पत्थर फेंक रहा है. सो दैट इज़ जस्ट नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी एंड आई फील इट्स नेचुरल एंड आई मीन दैट्स ओके. आई कांट रियली ब्लेम पीपल. निशा, ऑल्दो आपने बोला कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट एक बहुत बड़ा एलिगेशन जब हो जाता है जब यू नो किसी के रिलेशनशिप को भी खास तौर पे भाई बहन के रिलेशनशिप पर बोला जाता है. और करण मेहरा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कुछ इसी तरीके से है. उन्होंने कहा है कि जो जिनको आप भाई बोलती थी आप उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप में थी और ये सब उनके आंखों के सामने पीठ पीछे हो रहा था. No, he is lying about it. He's lying about it. The way he's saying it is completely wrong. And I think that, again, you know, like I said, that कुछ चीज़ें बहुत complicated होती है उनको समझाना इस तरीके से. And therefore, I don't want to even touch that topic. I've already said जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मैं answerable नहीं हूँ किसी को. As far as I'm not hurting anybody, everything is okay. This is what I feel. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसके साथ आपको जोड़ा गया था क्या उनकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रेशर या कुछ चीज़ों I don't want to comment on someone else here. Today I'm here to talk about me. तो मैं सिर्फ अपनी ही ज़ुबानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी. आई डोंट हैव द राइट टू टॉक अबाउट समवन एल्सेस फैमिली और टू कोट एनीबडी. उन्होंने कुछ बोला क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी भी वाइफ है, उनके भी बच्चे. आई विल लेट सी एवरीवन इज़ एन एडल्ट. मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ जिनको अपने लिए बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था लाइक यू सेड, सो नाउ ऑल्सो ही कैन टॉक एंड यू कैन रीच आउट एंड टॉक. आई एम नॉट गोना like represent anybody. I'm only representing myself here today. So any questions directly pertaining to me जो मुझे लगेगा I can answer, I'll be happy to answer. You also said कि you know कुछ लोग हैं जो बीच में टूट गए, उन लोगों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया. I'll come to that point. I'll come to that point. Okay, ठीक है, आप Yeah. आइए. I'll come and then we'll take that question. And you want to talk about yourself and you are representing yourself. Yes. So this technically concerns you. What is the nature of your relationship with Ruby? Because Karan has accused you of being in a relationship with him. So if you can just clear the air. So I feel it's not pertaining to the case. It's not important for me to clear the air, and only because Karan has put an allegation on me, he'll tomorrow say that he wants the moon, or he'll say Nisha went and got the sun or ate it up, or he'll say anything out of his whims and fantasies. I can't give a reply to everything he says. And I'm not comfortable sharing certain things about my life because I don't think that I'm answerable for those areas of my life. Everybody has the right to draw a boundary around them, and I think I should also be given that right. Only because I'm a public figure and we are in this open communication where people can ask me questions doesn't mean that I have to answer every question. So I'll just like to respectfully, you know, not take up this question. Yeah? Can I move on to the next one? What do I say about Kavish? हमने sporadically हर point में उसके बारे में बात की है, but Karan has said I'm not a good mother. He's asked for full custody. He has said I'm completely mentally unstable. और वो धीरे धीरे वो unstable उनके counter petition में वो मुझे पूरा पागल ही बना दिया उन्होंने. Okay? And he said चाहे 5 साल लगे या 5 महीने लगे, he is going to remove Kavish of my custody. So, like I said. भी सामने आई थी कि आपको सच में कुछ इश्यूज हैं और जहाँ पे आपने भी कुछ थोड़ी बातें की थी, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ ऐसा है भी या नहीं है. नो, आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन की बात है बिकॉज इस बारे में मैंने लॉकअप में बहुत ओपनली बात की है अबाउट मेंटल हेल्थ
and I'm a huge promoter and an advocate of mental health. I talk about it openly. To shame somebody for their mental health issues is not the right thing to do. And we live in today's times where all of us have some or the other kind of a thing. It's just that it's not detected. क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, हम ओपनली जाते नहीं हैं. लोगों को अगर हम बोले नहीं कुछ इसका है मेंटल हेल्थ इशू, कैन वी विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, लोग बोलते हैं ओ माय गॉड ये पागल हो गई है क्या, ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी. वी नो इट, वी आर ऑल लिविंग इन दिस सोसाइटी, वी नो द स्टिग्मा दैट्स अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ, राइट. So yes, I've had challenges in the past, but the way he's saying it, that I'm crazy, I'm mental, I'm incapacitated to take care of my child, that's not correct. That's not correct. मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, बहुत लोगों के साथ काम किया, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेज हों, डायरेक्टर्स हों. आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. आई एम अ प्रोफेशनल. आई रिपोर्ट टू माई शूट्स ऑन टाइम. आई लर्न माई डायलॉग्स. I mean, I raise my invoices. I'm conducting a home, a child, his education. I meet the teachers for PTM. I make sure he does his homework. How else can you prove that you're mentally stable? And you really don't have to. You really don't have to prove it. It's just out there. Does he has any proof, like doctor से related या psychiatrist से related या आपका जो mental health है वो इतना खराब है जो How can he have proof about मेरा mental health खराब है? This happened in, मैंने इस बारे में लॉकअप में भी बोला है बहुत elaborately. So I don't know if I should repeat it because I didn't think we would talk about this today. But yes, in 2014 we had a child which we miscarried. In 2015 there was an extremely abusive incident that happened in our life, my life. And Karan was not at all supportive during that time. And whether it was emotionally, in any way, whether I wanted therapy, I've written all these things. मैंने last time आप लोगों को ये बात बताई थी, I think in the first press conference, and then lockup में भी ये बात थोड़ी सी about mental health के बारे में बात हुई थी. इसकी भी जो भी evidences हैं वो कोर्ट में submit हो चुके हैं. And that time we were almost like going through a breakup of sorts, you know. And we were not happy, like I was not happy but he was busy, right? He didn't have the time. And that is the time when I had gone to a therapist and I was detected with depression, a depressive phase of bipolarity. Bipolarity is a mood disorder. But then I went for my therapy sessions. It went on for about a few months and then it was all okay. But saying something like, you're mentally unstable, Karan को पता है that I've been a primary caretaker of our child Kavish. Does he not even think of the impact that it will have on Kavish's brain या Kavish's mental health अगर मैं और वो अलग हो जाते हैं? Because Kavish and we have a very strong bond. तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अगर आप बच्चे का भला चाहते हो, बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसकी परवरिश अच्छे से हो रही है और हो रही थी भी जब आप बिजी थे, आप अपना शूट कर रहे हो, आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो बच्चे की तभी भी परवरिश हो रही थी. So how can you go as far as saying that she is not a good mother, she is mentally unstable? You'll have to prove it, mister. You'll have to prove it. And you're not a doctor, and neither is your lawyer a doctor, right? So don't try to become one. I mean, you can't just say anything and not just support it. So that's it, and then I want to show you guys the video कि this November 2 तारीख को, 1 second before you play it, मैं जी का शो कर रही थी और मुझे कोविड हुआ था, मैं क्वारंटीन में थी और मेरा 7th डे था कोविड का और मुझे डॉक्टर ने बोला था टू गो एंड गेट माई CT स्कैन. सो आई फॉलोड ऑल द प्रोटोकॉल्स इन माई सोसाइटी एंड आई वाज सेंट फॉर CT स्कैन. जब मैं वहाँ गई तो मॉम का मुझे फ़ोन आया कि बेटा करण आ गया 6 लोगों के साथ, एंड ही जस्ट केम. सो आई एम गोना शो यू अ ग्लिम्स ऑफ द वीडियो. And you have an FIR again. That's 100, no? He's coming with this. Against my parents or me or whatever. Really? जाके आप लोगों ने कर दिया तो. All the lines that you've spoken of. Show the other video. So it is the 2nd of November. I was detected COVID positive on the 28th and I was in quarantine in this room. And Karan has just come in. I went out for the CT scan. He doesn't have any permissions to come in the house. He's opening any drawers, any cupboards, taking everything out. Kavish was sitting right here. Doesn't even care, and he's come with all these people. I don't know who these people are. They're hiding themselves and I ask them who they are.
सो ही जस्ट केम इन अनअनाउंस्ड. इसके बाद मैंने कॉप्स को फ़ोन किया था. वी वेंट टू द कॉप स्टेशन. आई सेड अगर इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए थी तो ये मुझे इंसानों की तरह एक मैसेज कर सकते थे कि 2 तारीख को, 4 तारीख को, ट्यूसडे को 7 बजे, 3 बजे, व्हाटएवर, कि मैं आ जाऊँ. आई वुड हैव सेड ओके. मैं ऑलरेडी अपने लॉयर्स से पूछ रही थी कि इसका सामान यहाँ पे पड़ा है, यू नो, हाउ डू वी सेंड इट अक्रॉस, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बोल चुका है यूट्यूब पर. तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ गोना मेक आउट ऑफ इट, और ही विल प्रॉब्ली थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली और व्हाटएवर, आई डोंट नो. सो आई वाज बॉदर्ड एंड दिस इज़ नॉट द वे यू जस्ट कम इन अनअनाउंस्ड. इट वाज सो इंटिमिडेटिंग क्योंकि आप 6 लोगों के साथ आए हो जो गुंडों की तरह लग रहे थे. And you saw that man, he was right inside my wardrobe. मतलब वो जो रूम था, जो मैंने बोला I was quarantined in this room, that's a suite, right? So there is a bedroom, then there is a bathroom, and then there is a wardrobe. ये लोग मेरे क्वारंटीन जोन को पार करके अंदर जा चुके थे. सब जगह जा रहे हैं, सूटकेसेस निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं. काविश वहाँ पर सोफ़ा पे बैठा हुआ है. And he was just shocked that what is happening. और अब मैं उसको थेरेपी सेशंस के लिए ले जा रही हूँ कि नहीं बेटा, पापा शूट कर रहे हैं, यू नो, पापा आपसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो रही है. और यहाँ पे पापा आके खड़े हो जाते हैं कोविड के टाइम पे, जहाँ दुनिया में लोग मर रहे हैं. और मेरी मॉम बोल रही है बेटा उसको कोविड हुआ है, वो क्वारंटीन उसका जोन है, वहाँ मत जाओ. यू वांट टू शो माई कोविड रिपोर्ट. एंड मैं छुट्टी लेकर अपने प्रोडक्शन से बैठी थी बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एवरीवन वाज इन द क्वारंटीन जोन एंड यू नो यू कांट एक्सपोज द एंटायर यूनिट टू इट. सो दिस वाज ऑन द 28th of October that I was detected positive. And this happened on the 2nd of November. So then I called the cops and we went to the police station and then I gave a written complaint. You have that written complaint? वो वाला, इसके पहले वाला, हाँ. Complaint against husband Karan Mehra 2 November को to the senior inspector for barging in unannounced with strangers at home and misbehaving. तो जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया या बताया, दैट इज़ देयर इन दैट. नाउ एक तरफ मैं देख रही हूँ कि करण मेहरा को मिल रहे हैं सर्टिफिकेट्स ऑन व्हाट हिज योगदान टू कोविड हैज़ बिन, और दूसरी तरफ अब अपने ही घर में गुंडों की तरह, जब आपकी 16 तारीख को कोर्ट में ऑलरेडी डेट है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है कि आपको कुछ सामान अपने घर से लेना है, तो आप 2 तारीख को ये काम क्यों कर रहे हो? वाई यू नॉट वेटिंग टू गो फॉर द कोर्ट डेट? You can wait, right? Maybe you are in fear that the court might not allow you, so you just want to do this or whatever your reasons are. I don't know, but this is not the way to behave. जो करण ने बीच में इंटरव्यू में नहीं कहा था, बीच में जब मैं काविश को 2 मिनट के लिए मिला था, उसने कहा पापा आई लव यू, आई मिस यू, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो मतलब इसको लेकर ही रहूँगा. ऑब्वियसली ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ गोना टेल यू आई लव यू, आई मिस यू, दैट्स अ गुड थिंग. एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि अगर वो 5 महीने बाद भी आई लव यू, आई मिस यू बोल रहा है तो माँ ने उसको फीड नहीं किया है. ऐसा ये प्रोसीजर था इनका. ये आपका जो वीडियो आपने जो बनाया, ये आपने इंस्टाग्राम कहीं पर भी आपने ऑफ कोर्स नहीं डाला है. और आप लॉयर को ये चीज़ आपने बताई थी लीगल वे में जो? ऑफ कोर्स बताई है. अब क्योंकि हमारा केस चल रहा है, दैट्स व्हाई आई हैड टू रिकॉर्ड इट, बिकॉज हाउ एल्स वुड आई प्रूव? आई कॉल द कॉप्स, राइट? देन आई हैड टू शो देम द वीडियोस कि वो ये कर रहा था. ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव अ केस गोइंग ऑन, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग. उस टाइम पे तो आप पैनिक कर जाते हो, राइट? बिकॉज एक तो आपको ऑलरेडी कोविड है, यू आर फीलिंग वीक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सडनली मॉम इज कॉलिंग, वो आ गया 6 लोगों के साथ एंड ऑल. तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? वाई डू यू हैव टू बी सो इंटिमिडेटिंग? यू कैन डू इट इन अ सिविलाइज्ड मैनर. You don't have to scare people. Nisha, he had also accused in the press conference earlier. He accused कि आपने उनको जब वो कपड़े लेने आए थे तो आपने उनको कपड़े नहीं दिए थे, सिर्फ उनको मैं 4 जोड़ी कपड़े देकर उनके पुराने, and you returned. And second, he also accused your mom and जो उन्होंने आपको आपके रूममेट पार्टनर है कि everybody is together and everybody is stopping him from entering the house. And You mean the day he entered? This no, day? Before ये सेकंड चीज़ है, एंड फर्स्ट थिंग No, इज कि it's उन्होंने not right. It's कि not right. आपने उनको कपड़े और ये सारी चीज़ें दी नहीं. नहीं, इवन व्हेन ही वांटेड. पर मैं क्यों नहीं? See anyway, obviously. नहीं, ये हो गया. You've shown this already. See, he's taken everything. No, I have a video of that. मैंने वो नहीं अटैच किया.
देखिए 1 जून को जब ये हुआ था तो करण को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। आई थिंक 1 को ही शायद सुबह चाहिए थे या 2 को, मुझे याद नहीं है। वो उनको दे दिए गए थे। हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं, उनको ये बात पता है। आई डोंट थिंक आई शुड बी टेकिंग हिज नेम, बट आई एम श्योर इफ़ ही इज़ वॉचिंग द कॉन्फ्रेंस ही वुड नो। उनके हाथों ही ये सामान गया था, उनकी सारी जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी। कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने बोला करण ने कुछ चीज़ें मांगी है। उसकी सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी, उसकी सारी, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या टी शर्ट्स हो, जितना कुछ भी मैं डाल सकती थी, जो भी सूटकेसेस मेरे पास थे उसमें मैंने दे दिए उसको। उसके बाद मैं कैसे दूँ, यही तो मैं बोल रही हूँ। आई हैव बीन आस्किंग द लॉयर्स एंड ही शुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट इट, एंड ही ऑलरेडी पुट इट इन द कोर्ट, जिसकी डेट उसकी 16th को थी, एंड 2nd को ही केम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। Why would I stop it? It's not like I'm going to wear his t-shirts or whatever. See, I am a peace-loving person. I want him to live in peace, to have his life and to leave me alone. Story over. ना मुझे उससे कुछ चाहिए, ना उसको मुझसे कुछ चाहिए, होना चाहिए. And that's it. You've shown the statement to the cops and all, right? Email भी बता दिया आपने. Certificate आपने बताया वो वाला. That's okay. Now I want to talk about, these were the main allegations that I wanted to counter. I want to talk about these character witnesses जो आ गए हैं सामने. इनकी अपनी credibility क्या है? इनका character witness कौन बनेगा और फिर उनका कौन बनेगा? और ये character witness क्या होता है? ये मीडिया ट्रायल में आप character witness बन रहे हो? Why don't you go to the court if you truly want to support somebody? Be a character witness in the court. See, character का तो ऐसा, I think करण का भी एक body of work है, मेरा भी एक body of work है. This was probably the first controversy of our life and it's unfortunate जो कुछ भी हो रहा है. और ये character witnesses are being so funny कि oh my god मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये इग्नोर, what is this? आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का. जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे, 13 साल मैं उस आदमी के साथ रही हूँ, मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है? और आप मेरे बच्चे के बारे में सोचो, आप बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड. डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन. हेल्प ऐसे होती है. एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है, मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज अबाउट एलिमनी. डिड यू नो दैट करण हैज़ एक्चुअली आस्क्ड फॉर एलिमनी? दोज कैरेक्टर विटनेसेस जस्ट ऑन, क्योंकि उसने उसको मैसेज किया तो वो कैरेक्टर विटनेस बन गई. But aren't these character witnesses your own friends? Like they have been your. It's just surprising, you know. They are saying कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं जासूस होती. ये कैसे टाइप के वीडियोज़? I don't even want to comment on it and make a mockery out of this. I don't want to pay heed to these kind of people. I think people should mind their own business. और दूसरे मेरे करीबी दोस्त जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि निशा इज़ हंग्री फॉर लव बिकॉज उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसके पापा भी नहीं थे. इसको आप इतने ड्रामेटिकली पैकेज कर रहे हो. हम में से कई लोग होंगे जिनके पापा नहीं होंगे या इन्हें प्यार नहीं मिला. मैंने तो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आउट देयर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है. जो चीज़, जो कॉन्वर्सेशन आप एक दोस्त के साथ सेंसिटिवली अलग से प्राइवेट में करते हो, उसको आपको लगता है यू आर एट लिबर्टी टू गो आउट एनीवेयर एंड टॉक अबाउट इट इन एनी लाइट कैजुअली व्हेन योर फ्रेंड इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी. आप दोस्ती निभा रहे हो और आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि जो किटी आपकी दोस्त ने फॉर्म की थी वो किटी को तोड़ के आप एक नई किटी जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहे हो. दीज आर योर फ्रेंड्स. इट्स जस्ट सैड एंड डिसहार्टनिंग. लाइक आई सेड, लुक, आई एम वर्किंग हार्ड. I'm working day and night. I want to use all my energies and I want to gather all my strength and I want to do this for my child, for my future, for my child's future. Because if I don't do it, nobody else will. Not my friends, not the character witnesses, not his father. If his father really wants to do something, then उसका एक सही legal तरीका होता है, वो follow करो. But what exactly went wrong, Nisha, कि ये जो आपके फ्रेंड्स थे आपके अगेंस्ट जाकर are now supporting her? I really don't know because I don't have the time to go and gossip 2-2 घंटे सब लोगों के साथ बैठ के. I have not done that. All my friends know it. मैं कभी किसी को जाके मैंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया because I don't have the time and neither is that my inclination. I don't know what happened between me and my best friend. I think it was just a difference of opinion on something and then a lot of jazz and a lot of crap happened which I don't want to get into. बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे पास किए गए बट जो मुझे नहीं लगता था कि उनकी फ्रीडम थी ऐसा बोलना,
but I just feel that they're still my friends and I've spent some good time with them. I just want to tell them to back off and lay off and to just mind their own business and to just let me be. That's all I'm asking. एंड आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं किसी के लिए भी बात करने का, तो प्लीज़ पहले उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि दे बिकम वेरी डैमेजिंग. द मीडिया इज़ वेरी पावरफुल. You all know that. So let's use our power in the right way. Because I'm a mother, I'm also a daughter. I also have responsibilities and trolling affects me too. भले ही मैं मेकअप लगा के अपने बाल सीधे करके आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, but I'm human. You know? And I have work. तो प्लीज़ जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्रॉस चेक दोज फैक्ट्स. Yes, the person might not be ready to talk about it the next day. It's okay. Because she is hurt, she is in pain. हम बैडमिंटन नहीं खेल रहे कि वो वहाँ से मारेगा तो मैं यहाँ से मारूंगी. So let's just take these things a little more seriously. And this is all I want to say. And I want to just say that let me focus, let me work towards my child. और मैं उसका ख्याल रख लूँगी. And I want to give this message out to Karan too. Please stop this. Stop this. ये एक तमाशा बनता जा रहा है. Don't get into all these media trial things. Don't do it. Let's end this in a dignified way. We are human beings. We are civilized people. We can do it. एक तरफ आप बोल रहे हो काविश मेरा बच्चा बच्चा और आप ये वीडियोस बना रहे हो. मुझे हमेशा डर लगा रहता, वो गार्डन में जाएगा, किसी के हाथ से फ़ोन करके अपने मम्मा की फ़ोटो ना देख ले. मैं कितना प्रोटेक्ट करूँगी उसको. And I feel vulnerable when I get all these trolls and I go into a small city with my child. मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई कुछ फेंक के ना चला जाए, मुझे कोई कुछ बोलना दे बच्चे के सामने. I'm a mother, so stop doing this यार, just stop it. Lastly मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि I have full faith in the Mumbai police and the judicial system. I'm sure that I will get my justice, and I think Karan Mehra should stop. And I want to say that I'm not playing the sympathy card. I'm not playing the woman's card. He is in fact playing the sympathy card, and he should not do that. He should not take advantage of his fame and position to do this. That's all guys. Thank you so much for coming in today, and I really hope that इसका जो result आए वो positive आए, and I really hope that this kind of makes sense to Karan too, and I hope that we can put an amicable end to this whole situation and अपनी अपनी लाइफ हम शुरू करें, because I'm sure करण का काम भी असर हो रहा होगा, because यही उसने कोर्ट में भी बोला है. तो ये काम जो YouTube बनाने वाला है ये बंद करते हैं और अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं. So that's it. Thank you so much. Thank you everyone. Last question. Yeah. आपके साथ जो फर्स्ट डे आपके इंसिडेंट के टाइम पे जो खड़े थे, वो करण के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके अगेंस्ट भी कुछ बोलते नजर आए. तो आप अभी फिलहाल उनके साथ कांटेक्ट में हो नहीं हो, या आप नहीं, मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ. कि फिर फर्स्ट डे आपको आना ही नहीं था अगर आपको ऐसे बोलना था तो? मैं नहीं हूँ वैसे. इनफैक्ट लोगों ने ही मुझे मैसेजेस भेजते गए हैं. ठीक है, वंस यू गेट द मैसेज देन आई मूव ऑन, राइट. आई विड्रॉ. आई डोंट अटैक, आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ. आई जस्ट विड्रॉ बिकॉज मुझे उठना है ना. अब मैं पागल ही हो जाऊँ या अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद करके रो लूँ, वो लग्जरी भी नहीं थी मेरे पास. जब हम दुखी होते हैं तो हम कभी मन नहीं होता किसी से बात करने का. बट आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव टू ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस. एक भी दिन उसने अपना स्कूल नहीं मिस किया, चाहे मुझे चोट लगी हो या कुछ भी हो. So I just want to concentrate on that. I want to raise a healthy and a happy human. And if Karan Mehra cannot contribute to raising that child with me, then please at least back off and just let me live alone. That's it. Thank you guys. Thank you so much. Thank you everyone. Please join us for snacks and tea.